It is a dorsiventral, compressed, that is flat, lateral appendages. Now when I say lateral appendages, यानी कि plant body के sides में produce होते हैं. Lateral appendages of the stem के sides, यानी कि plant body के sides में produce होते हैं, and that too at a very precise place or a precise location which is called as nodes. मतलब proper nodes पे ये produce होने वाले appendages है. Why are they called appendages? Because these are outgrowth. These are outgrowth of the plant, and so they are called as appendages. And it is specialized to perform photosynthesis. Of course, iska main function is to perform photosynthesis. These are very thin, okay? These are very thin, expanded, green, and exogenous in nature. I just now said exogenous because they are produced from the buds. तो जो कोई भी प्लांट का पार्ट बड से प्रोड्यूस होता है, then that growth is called as exogenous. And if it is growing from inside of the plant, then that is called as endogenous. अब since leaf भी buds के through ही produce होता है, and they're born at a specific point, at a specific location called node. Node इसीलिए because यहाँ पे meristematic tissues है, meristematic cells है, जो every time new buds produce करके new leaf produce करेंगे, right? Which bud? To be more precise, axillary bud. Yes, leaf are produced by axillary bud, and that too they are produced at the axils of leaf. मतलब यानी कि जहाँ पे दो leaf के margins, okay, यानी कि जहाँ पे leaf के margins properly okay, not leaf का margin. What am I saying? या जहाँ पे दो stems properly अटैच होते हैं, यानी कि मेन स्टेम एंड उसके वहां से एक लीफ का स्टेम जो आता है, उसी पोजीशन पे वो दोनों एक्सेस के बीच में दिस एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट. आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन क्योंकि हमने बढ़ के इसमें ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था. एंड लीफ दे हैव लिमिटेड ग्रोथ. why do they have limited growth? Because they do not have growing point or a growing tip like root and shoot. रूट एंड शूट में कैसा है, टिप में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, सो दे कंटिन्यूसली ग्रो एंड दे इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट. बट लीफ में ऐसा नहीं है, लीफ के टिप में ऐसे कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं है, सो लीफ दे शो लिमिटेड ग्रोथ. मतलब जितना लीफ का साइज होगा वो उतने ही ग्रो होंगे. ओके, and there are three parts of leaf, that is what we discussed last lecture: leaf base or hypopodium, petiole or mesopodium, and lamina or leaf blade or epipodium. Yes everyone, तो चलो स्टार्ट करें एक एक पार्ट. ऑल राइट, सो विच आर द थ्री पार्ट्स? हाइपोपोडियम, मेसोपोडियम एंड एपिपोडियम. हाइपो यानी कि बिलो, इट्स अ बेस, इट्स अ बेस. हाइपोपोडियम, पोडियम क्या होता है पता? पोडियम, व्हाट इज पोडियम? Stage, yes, it's a stage, it's a platform, yes, it's a stage. So podium yani ki it's a stage, or it is a part which is supporting the other one. Am I right? Can I say that it is a part which is supporting the other one? So leaf base, this is a lower structure जो petiole और lamina को support कर रहा है. Leaf base is supporting petiole and petiole is supporting lamina. Understood? Leaf base is supporting petiole and petiole is supporting lamina. Okay, so let us see a typical leaf structure. Are you ready, guys? First Yes. is leaf base, hypopodium. Point of attachment of leaf to the stem. What is leaf base? Leaf main stem को जहां पे attach रहता है. Hello? A leaf? Yes. Where a leaf which is attached to the main stem. Okay? So leaf की जो डंडी होती है, right?
and this is attached to the leaf base. मतलब this is attached to the main stem, बराबर है? So this region is called leaf base. मतलब basically it is a point of attachment of a leaf to the stem. Stem ये है, ये petiole है, ये लैमिना है, तो ये क्या है? ये लीफ बेस है. अंडरस्टूड? ये लीफ बेस है. ओके, आप ये भी बोल सकते हो पिटियोल और मेन स्टेम के बीच का. ठीक है. इट प्रोटेक्ट स्मॉल बड एट इट्स एक्सिल. कैसे बताती हूँ. The main stem, nodal region, petiole and lamina. बराबर है. तो ये जो नीचे ब्रॉड पोर्शन है जिसको मैं कलर कर रही हूं, दिस इज लीफ बेस. अब ये एक एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस हो गया और ये दूसरा एक्सिस हो गया. स्टेम इज अ सेकेंड एक्सिस. तो दोनों एक्सिस के बीच में देयर इज अ स्मॉल बड विच इज प्रेजेंट, एंड यू नो व्हाट इज दैट बड कॉल्ड? एक्सिलरी बड. दिस एक्सिलरी बड इज प्रोटेक्टेड बाय द लीफ बेस. बराबर लीफ बेस को अटैच रहता है, वो पिटियोल को अटैच नहीं रहता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लीफ बेस को अटैच रहता है. ठीक है. तो ये हो जाता है आपका बड which is present in the axils of the leaf. दो axis के बीच में. Okay, it is prolongation of a tissue of stem. यानी कि जो stem का tissue होता है ना, उसी का ही continuation रहता है leaf base में. Now we have seen that in certain plants, please listen, in certain plants like cassia, mimosa, anyone remember this? This touch me not plant. Yes, Mohammed, you are absolutely right. Touch me not plant. Mohammed is absolutely right. Touch me not plant. Cassia, येलो कलर का फ्लावर्स होते हैं, बहुत 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 प्रेजेंट है अपने मीरा और भाईंदर में. ये प्लांट, ये बहुत बड़ा ट्री है कैशिया. येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, अप्रैल में ब्लूम होते हैं, अप्रैल में. इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स दे हैव. तो ये जो प्लांट्स है, बीन तो आप सबको पता ही है, बीन बीन चौली. हेलो बीन चौली. या अभी इन सारे प्लांट्स के लीफ बेस में, लीफ बेस जो है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग मोमेंट. हेलो, स्लीपिंग मोमेंट. मोहम्मद, जब हम लोग माइमोसा को टच करते हैं क्या होता है? मिस वो ऐसा मतलब श्रिंक हो जाता है. एग्जैक्टली, वेरी गुड. श्रेया, what happens to the mimosa plant? Shreya Yadav. Yes, ma'am. When you touch the mimosa plant, what happens? And वो अपने आप में fold हो जाता है. Exactly, it folds down. Komal, when it falls down, will it droop down or will it remain intact? It droops down a bit. Exactly, it droops down. It droops down. Divya, what is the reason behind it of drooping it? वो droop क्यों होता है? उसका टर्जिडिटी लॉस्ट हो जाता है. फैंटास्टिक, सुपर. बेसिकली क्या होता है पता है? जब आप किसी, रिदा सुनो, जब आप किसी लीफ, जील सुनो, रुजुता, रुजाला, सिद्धि, इब्राहिम, किरण सब सुनो प्लीज, वैष्णवी सब लोग सुनो. जब आप किसी भी लीफ को, जब ये माइमोसा की लीफ को आप टच करते हो, व्हेन यू टच इट, योर टच इज अ ट्रोपिज्म फॉर इट. मतलब आपका जो टच है ना, दैट इज एक्टिंग लाइक अ स्टिमुलस टू दैट लीफ. तो जब आप टच करते हो, द लीफ विल क्लोज बिकॉज इट इज लूजिंग इट्स टर्गिडिटी. मतलब लीफ, देखो लीफ प्रॉपर अपने शेप में कब रहता है? लीफ एक प्रॉपर, प्लीज लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लीफ अपने प्रॉपर शेप में कब रहता है?
when all the cells are nicely filled with water, है ना? ये जो वेन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये बीच में जो ये वेन्स दिख रहा है ना, ये वेन्स क्यों है आपको पता है इतने सारे? ये वेन्स इसलिए है ताकि वो लीफ में भरपूर पानी सप्लाई कर सके, बरोबर है? हाँ, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम इस लीफ को बाहर से टच कर रहे हैं, ये एरो जो है, इमेजिन ये टच है, ये टच कर रहे हैं हम लोग लीफ को. सो व्हाट हैपेंस, ऑल द सेल्स इन द लीफ विल स्टार्ट लूजिंग इट्स टर्गिडिटी, मतलब धीरे धीरे वो वाटर को लॉस कर देते हैं. आप समझ रहे हो? ऑल द वाटर इज पुश्ड डाउन टू द पिटियोल, मतलब सारा वाटर नीचे आ जाता है. सो व्हेन दे लूज द वाटर डाउन इनटू द पिटियोल, ऑब्वियसली द लीफ इज गोइंग टू श्रिंक, क्योंकि पानी निकल गया ना लीफ के सेल्स में से, तो लीफ श्रिंक हो जाएगा, एंड श्रिंक होने की वजह से वो बंद हो जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग मोमेंट. दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग मोमेंट. तो ऐसे लीफ का जो बेस है दैट इज स्वोलन. हेलो, अच्छा खासा स्वोलन होता है. और वो स्वोलन क्यों होता है? यू अंडरस्टूड. वेयर इज द वाटर कमिंग? द वाटर इज कमिंग डाउन इनटू द पिटियोल ना, व्हेन दे लूज द टर्गिडिटी. यस, लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस. अ वेरी क्लियर, लाइक सी आई हैव शोन वेरी क्लियरली. ये एक तो ये है, एक यहां पे भी देखो स्केली लीफ के साथ कवर्ड है, स्केली लीव्स. बोथ दीज आर कॉल्ड एज pulvinus. Got it? So what is pulvinus? It is a swollen leaf base which is responsible for the sleeping movement in certain plants, which is responsible for the sleeping movement of the leaves when it is touched. मतलब जब आप उस लीफ को टच करते हो ना, the leaves are closed. Is that clear? Everyone? Yes, ma'am. Okay. Done? Now, sheathing base, sheathing leaf base. What is sheathing leaf base? Leaf base expands into sheath. हेलो, मतलब यहां पर ना, ये बहुत यूनिक है. कैसे बताऊं मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये देखो, सपोज इफ दिस इज अ स्टेम, तो लीफ ऐसे बाहर निकलता है. नहीं समझा? ओके. लीफ बेस जो है ना, दैट इज लाइक अ शीट. इट इज एक्सपैंडिंग इनटू द शीट. लीफ बेस. बेस्ट एग्जांपल ग्रासेस एंड बनाना. हम लोग जब बनाना के स्टेम को ड्रॉ करते हैं, राइट, ये बनाना का स्टेम है. हाउ डू वी शो द लीफ? यहां से अराइज होते हुए दिखाते हैं, एंड देन वी ड्रॉ द लीफ, राइट. सी. ओके, कितने लोगों ने बनाना प्लांट देखा है? टॉक टू मी. जितने लोगों ने भी देखा है, टॉक टू मी. क्या देखा है आपने? आपने एक चीज देखा होगा. जस्ट होल्ड ऑन गाइस, आई विल गेट द चार्जर ऑफ द लैपटॉप प्लीज. 1 minute. I'll just get the charger. Please, 1 minute.
यस गाइस, हाँ मैं ये पूछ रही थी कितने लोगों ने बनाना के प्लांट को देखा हुआ है? देखा है ना? आपने देखा उसके लीफ ओवरलैपिंग होके बाहर निकलते हैं। हाँ मैम। यहाँ से एक लीफ निकलता है, फिर उसी को ओवरलैपिंग होके यहाँ से एक लीफ निकलता है, फिर उसी को ओवरलैपिंग होके यहाँ से एक लीफ निकलता है। तो वो जो नीचे का ओवरलैपिंग है वो कभी देखा है आपने? दैट ओवरलैपिंग बेस इज कॉल्ड शीटिंग लीफ बेस। और ये मोनोकॉट्स की खासियत है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ मोनोकॉट्स। ये देखो, मैं आपको क्लियर डिफरेंस दिखा रही हूं डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में। डाइकॉट के लीफ का प्रोमिनेंटली बेस है जो नोडल रीजन से बाहर आ रहा है, बट मोनोकॉट का देखो, द बेस इज लाइक अ शीट। कैन यू सी दिस एवरीवन? इफ यू वांट यू कैन जूम योर स्क्रीन, यू कैन सी इट। ये देखो शीट रहता है एंड दिस शीट्स आर ओवरलैपिंग। मतलब यहां से देखो, अभी ये शीट ने राइट हैंड साइड में लीफ निकाला है, so the next sheet will remove the leaf from left hand side, then the next sheet will remove the leaf from right hand side. मतलब basically the sheets are overlapping. तो जब आप एक लीफ को निकालने जाते हो ना, the entire sheet also come out, नीचे का शीट भी बाहर आ जाता है। आप समझ रहे हो? दिस इज अ वेरी टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट लीव्स। मोनोकॉट लीव्स ना वो ऐसे ही ओवरलैपिंग वे में शीट से अटैच रहते हैं, लाइक देयर शीट्स आर ओवरलैपिंग, देयर लीफ शीट्स व्हिच इज द बेस ऑफ द लीफ दैट इज, मतलब इनका जो बेस है वो स्टेम के टिश्यू जैसा नहीं है। हेलो, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं है। ये देखो ना, दिस इज अ पिटियोल, राइट? ये पिटियोल है, यहां पे देखो, दिस इज अ पिटियोल, करेक्ट? एंड दिस इज द लीफ बेस, बरोबर है? और मैंने क्या लिखा है कि लीफ बेस इज हैविंग अ टिश्यू व्हिच इज जस्ट लाइक द स्टेम। मतलब स्टेम में जो टिश्यूज होते हैं वही लीफ बेस में भी होते हैं। एंड दिस इज सीन ओनली इन डाइकॉट प्लांट। लेकिन मोनोकॉट प्लांट में जो स्टेम के टिश्यूज है वो लीफ के बेस में टिश्यू नहीं है, बिकॉज लीफ का बेस इज, लीफ का जो बेस है दैट इज इटसेल्फ इन अ शीट फॉर्म, इट इज फ्लैट और इन अ शीट फॉर्म। मतलब वो डंडी के फॉर्म में नहीं है, वो शीट के फॉर्म में है। गॉट इट? जहां से लीफ अराइज हो रहा है। So leaf base is expanded. It is not like a stem, cylindrical. It is expanded into a sheet. And example, best example is grasses, banana, and all monocot plants that you know it. Clear, everyone? Yes, miss. Yes, bamboo, sugarcane. Yes. Ha, Hiral. Yes, yes. The plant that we bring it at home during the Diwali for puja. Yes, वो भी वैसे। तो वो sugarcane है ना, Hiral? That is sugarcane. Yes, miss. Yes. तो इनके भी लीफ ना वैसे ही होते हैं, मतलब बेस से निकलता है। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट द लीफ बेस? सबको क्लियर? हाइपोपोडियम। मूविंग ऑन टू, मैम हाँ हाँ सॉरी, मेज भी ना? हाँ हाँ मेज भी। यस यस। अरे वाह, अरे वाह रीदा, आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया यार मेज का। एवरीवन, आपने मेज का प्लांट तो देखा ही होगा, और मेज के प्लांट को हम लोग ऐसे लीफ ड्रॉ करते हैं, राइट? वी ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसे ड्रूपिंग वाले लीव्स होते हैं। सो दीज आर, इनके भी शीट ना पूरा ओवरलैपिंग होता है रिदा। इनका भी जो बेस है ना वो पूरा ओवरलैपिंग होता है ऊपर की तरफ में। गेटिंग इट? और यहां से इनका निकलता है फीमेल फ्लावर और नीचे रहता है मेल फ्लावर। सो बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर अटैच्ड टू कॉमन प्लांट, सिंगल प्लांट। यस रिदा, मेज इज राइट आंसर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कम्स पेटियोल, mesopodium. Petiole helps the blade or the leaf to expose itself towards the sunlight. यानी कि सनलाइट को एक्सपोज होने में petiole plays a very important role. Okay,
जितना लीफ सनलाइट को एक्सपोज होगा, that much will be better for the plant, because more the sunlight is absorbed, more is the rate of photosynthesis. Getting it? Yeah, more the sunlight is absorbing, more will be the better for the plant. Rate of photosynthesis will increase and the efficiency of the plant will also increase. Petiole, leaves which are with prominent petiole are called petiolate leaf. They are called petiolate leaf. That means a leaf with petiole are called petiolate leaf. Best example, mango. Everyone is aware about the mango. Proper petiole hota hai, and there is a leaf, right? Yes or no? Yes. See this. Right? So it has a petiole. It has this petiole. That is petiolate leaf. लेकिन जिन लीफ को petioles नहीं होते हैं, जिन लीफ को petioles नहीं होते, they are called sessile leaf. Yes, they are called sessile leaf. That means they are directly attached to, ये देखिए, they are directly attached to stem, main stem. No leaf base, no petiole. No leaf base, no petiole. No leaf base and no petiole. Directly it is attached to the main stem. Did you just draw it like small, छोटे सा बाजू में draw करके रख दिया? Should I rub it? Understood? Sessile and petiolate. All right, very good. Now, pay attention, please. Now comes little bit of modification. थोड़ा बहुत. कभी कभी ना कुछ leaves में, कुछ plants में ना petiole is nicely shaped. Like we have winged petioles. Now you must be wondering, winged petioles. This is slightly expanded. मतलब ये जो petiole है ना वो हल्का सा expanded होता है और ये सारे citrus plants में पाए जाते हैं. मैंने एक example लिया lemon. You can consider all the citrus plants. Yes, all the citrus plants. Of course. दिखाऊं? ये देखो. See this, beautiful. Winged petioles. ये देखो ना. I'll take then another color pen. ये देखो. See this expanded petiole. Everyone, can you see this? Yes, miss. Nice. These are called winged petioles, expanded petiole. The petiole is slightly expanded. Okay, that's called winged petiole. So if I want to draw it, it will be the base of the leaf. The petiole will be slightly swollen, and then it is going to form the lamina. And remember, dicot है, तो midrib तो बहुत prominently होगा और यहीं से ही venation start हो जाएगा. Okay, तो ये हो जाता है winged petiole. This is what is called winged petiole. Am I very clear? Very clear? ये leaf base है. This is petiole. And this is lamina. यानी कि leaf. Clear? Rida? Rida? मिस वो फ्लैट होता है ना? हाँ फ्लैट होता है. फ्लैट winged. Winged, flat. Petiole flat हो जाता है और winged shape का रहता है. Wing. बाबू अपन बटरफ्लाई का ऐसा wing draw करते हैं ना, ऐसा wing draw करते हैं ना, वैसे it's like a wing, like a small two flaps. Yes. 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 चलो आगे बढ़ो. Next is partly winged and partly tendriller.
petiole is partly winged, matlab expanded. When I say winged na, imagine, you need to understand it is expanded. And partly tendrilar. You look at the example that I have given. Anyone can recognize which plant I am talking about? Nepenthes. How many of you remember Nepenthes? How many of you know it? Nepenthes, Socho. And a very unusual type of plant. Grows in a tropical region. Requires a lot of nitrogen. Does not grow much in height. Plant. It's a kind of pitcher plant. Pitcher plant. Rujuta, perfect. Pitcher plant. Yes, I am talking about pitcher plant. Very good, Siddhi. Pitcher plant. Yes, Vaishnavi. Pitcher plant. Pitcher plant में it is partly winged and partly tendrilar. ये देखो. Look at this. Partly winged and partly tendrilar. Look at this beautiful petiole. ये देखो. See, this is partly winged. दिख रहा है आपको? And the tip of the petiole is partly tendrilar. Tendril. Can you see that? Yeah, tendril. So it is winged. ये leaf नहीं है बच्चा लोग. This is not a leaf. No, 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 no. This is a petiole which has become flat, expanded. So ये winged है, and half of the petiole is tendrilar, which is raising the main leaf. ये lamina है. This is lamina, which is going to eat insect. Yes, it is an insectivorous plant. Yes, it is an insectivorous plant. ये lamina है. Lamina is hollow. देखो, it is hollow because it is going to take inside the insect. मतलब यहाँ से insect अंदर जाएगा and then ये जो flap है ना ऊपर वो बंद हो जाएगा. Isn't that amazing? Yeah, and this is a tendrilar petiole and then there is a expanded petiole. Yes. Ma'am, then which is the leaf? ये lamina लिखा ना मैंने, leaf, lamina. I have written this. हाँ. Lamina मतलब leaf, Simran. Lamina means leaf. हाँ, yes. चलो. Next is tendrilar petiole. यानी कि petioles are tendril in nature. मतलब petioles जो है, they will turn themselves into tendrils. Best example I can take is clematis. In some plants, petioles are swollen and spongy. और मुझे अच्छे से याद है जब मैं ये बता रही थी वाटर हाइसिंथ के बारे में, तब मुझे किसी ने पूछा था, आई थिंक इब्राहिम या तो किरण ने मुझसे पूछा था कि मैम वो स्वोलन पार्ट क्या है. याद आ रहा है? दिखा देती हूँ पिक्चर, अब याद आ जाएगा. अब याद आया? कहाँ पे पढ़ा था वैष्णवी? हाँ बोलो. मैंने हाँ आपने पूछा था. राइट राइट, वैष्णवी ने पूछा. यस, ये जो बलून शेप का आपको स्वोलन स्पॉन्जी ऐसे बॉल शेप का दिखाई दे रहा है ना स्ट्रक्चर, लाइक slightly swollen structure, this is the swollen petiole. Yes guys. Swollen petiole. Superb. कोई बता सकता है क्यों है ये? or floating in the water. इसमें एयर स्टोर होती है शायद. एयर स्टोर होता है. एग्जैक्टली. दे आर स्वोलन एंड स्पॉन्जी ताकि वो एयर वैक्यूल्स को स्टोर कर सके. एंड इट कीप्स द प्लांट वेरी लाइट इन वेट ताकि वो फ्लोट हो सके. वेरी गुड किरण एंड वेरी गुड मोहम्मद. नाइस. यस. नाउ जितने भी petioles होते हैं, like say whether it is a winged petiole or a tendrilar petiole or a swollen petiole,
all the petioles they allow leaf कुछ leaf के ना petioles बहुत बड़े होते हैं. Some leaves they have huge petiole, like बड़े बड़े long thin petioles होते हैं. You know why? To allow the leaf blade to flutter in the wind. मतलब leaf blade को fluttering करने के लिए. What is the meaning of fluttering? Moved by the wind. Yeah, it's a typical movement by the wind. मतलब ऐसे ऐसे leaf ऐसे ऐसे हिलते ना ऐसे like a fan. इसको बोलते हैं fluttering. How we flutter the fan? चाइनीज लोग कैसे फैन को ऐसे फ्लटर करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लटरिंग. तो लीफ भी ना ऐसे ऐसे मूव करते हैं. वो मूवमेंट जो है, दैट टिपिकल मूवमेंट व्हिच इज कॉज्ड बाय द विंड व्हेन इट इज ब्लोइंग, इट अलाउज द लीफ टू गेट कूल डाउन. Because you know that leaf is the only part of the plant which is exposed to the sunlight so much. Am I right? अब इतना सारा सनलाइट को अगर वो एक्सपोज करते हैं तो जाहिर सी बात है वो गर्म तो हो ही जाएंगे ना, तो उनको ठंडा भी तो करना जरूरी है ना बच्चा लोग. ये सुनो, एंड दैट्स व्हाई दैट फ्लटरिंग इज कॉज्ड बाय द विंड. बट ये तभी पॉसिबल है जब उनके पिटियोल्स जो है वो बड़े बड़े हो. तो जिन लीफ का पिटियोल बहुत लॉन्ग और थिन होता है ना, दे कैन फ्लटर वेरी इजीली, वेरी फ्रीली व्हेन द विंड इज ब्लोइंग. अंडरस्टूड? हेलो? मतलब इसके लिए मुझे कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है. इट इज वेल अंडरस्टूड कि मैक्सिमम प्लांट्स में ऐसे ही होंगे पिटियोल, राइट? So that's why I have not specified any examples over here. Most of the flowering plants, dicot plants के petiole लंबे और thin होते हैं, long and thin ही होते हैं, so that they can cool down very easily. Am I clear? Like, Yes, miss. इस लीफ ब्लेड फ्लैटर होते हैं क्या? हाँ बेटा, इस लीफ ब्लेड फ्लैटर होते हैं. हाँ लीफ लैमिना, हाँ लीफ ब्लेड. ओके मिस. तो आपने कभी किसी प्लांट को ऐसे विंड ब्लो होते हुए देखा नहीं है, हिलते हुए? देखा है. थप्पड़ मोहम्मद, थप्पड़ खाओगे मैंने बोला. अच्छा. बचपन से तो हम बच्चों को दिखाते, मतलब वो गलती से मैंने लीफ बेस पढ़ लिया था उसको. नहीं, लीफ ब्लेड, ओनली द लीफ ब्लेड. हाँ गाइस, ओनली द लीफ ब्लेड. ओके, अब देखो मोहम्मद, इट इज वेल अंडरस्टूड कि पिटियोल भी लॉन्ग और थिन है, तो पिटियोल भी थोड़ा उसके साथ मूव करेगा. आर यू गेटिंग इट? मतलब बेस नहीं मूव करेगा, लीफ का बेस और स्टेम तो मूव नहीं करेगा, मेन स्टेम, बट पिटियोल और लीफ मूव करेगा. जितना वो मूवमेंट देंगे उतना वो लीफ ठंडा होते जाएगा, कूल होते जाएगा, उसका सरफेस कूल होते जाएगा. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस फ्लटरिंग it will also bring the fresh air to the surface. क्या होता है, विंड ब्लो हो रहा है ना और लीफ फ्लटर हो रहे, तो उसके आसपास पे जितने भी वेपर्स है वो सारा निकल जाता है एंड फ्रेश एयर मिलता है लीफ को फॉर रेस्पिरेशन. मोहम्मद, especially during night time. नाइट टाइम में फ्लटरिंग हम लोग बहुत कम देखते. क्यों? हम लोग फ्लटरिंग इतना कम क्यों देखते नाइट टाइम में? नाइट टाइम में भी विंड ब्लो होता है. तब कल ही रात की बात ले लो, कल सबको फील हुआ रहेगा ना घर पे बैठ के, ठंडा ठंडा हवा आ रहा था. सडनली कल रात को क्लाइमेट चेंज हुआ था, लाइक देयर वाज अ कूल ब्रीज व्हिच वाज ब्लोइंग यस्टरडे नाइट, है ना? कभी कभी रात को भी होता है, इवनिंग के टाइम पे भी होता है, विंड ब्लो होता है. क्योंकि रात को वो सन ठंडा अब्सॉर्ब नहीं कर रहे, तो Exactly. गर्म नहीं होते हैं. एग्जैक्टली. और ठंडा होता है, एटमॉस्फेयर काफी ठंडा हो जाता है, तो वो उतना फ्लटरिंग नहीं करते हैं. आर यू गेटिंग इट? बिकॉज ऑलरेडी द एटमॉस्फेयर इज कूल डाउन. अंडरस्टूड? यस. Everyone has written down this examples, noted down. Yes. Done? Chalo. Moving on further. Lamina, the C part, the third part, epipodium. Oops. There's an oopsie. Epipodium. Yes. Now, what is epipodium? Lamina. It is a leaf blade, which is also called as leaf blade. Simran, lamina is also called as leaf blade. Rida, lamina is also called as leaf blade. It is green,
nicely green in color, rich in chlorophyll pigment, expanded part, flattened part with proper veins and veinlets ka distribution. Wow, beautiful. Look at this. Look at this, bacha log. Nice. See, this is a leaf base. I've shown the petiole prominently. I've shown the axillary bud as well. And look at this lamina. And can everyone see the midrib and the veins and the veinlets? Yeah, can you see that? So lamina is basically it's a proper expanded part which is highly supplied with veins and veinlets. Yes, of course, there has to be too much of supplement of veins and veinlets because these veins and veinlets are going to allow proper supplement of water. तो मैंने यहाँ पे 3 कलर का इस्तेमाल इसलिए किया है because I want to show you veins and veinlets. मुझे आपको उसका डिफरेंस दिखाना है. Okay, ठीक है. So now look at this. जो ब्लू से मैंने ड्रॉ किया है, guys, these are veinlets. ठीक है. जो ग्रीन से ड्रॉ किया मैंने, these are veins. And जो white से ड्रॉ किया है, this is midrib. That everyone knows. All right. So basically, midrib एक prominent vein होता है, which is very thick, and this midrib is branching out to form veins. And veins are further branching into a very fine structure called veinlets. अब समझ में आया? Distribution कैसे होता है लीफ के अंदर, ये समझा everyone? Midrib, which is a thick vein passing into the lamina, and this midrib is divided into veins, and veins are further divided into veinlets. Is that clear? यानी कि veinlets जो है ना, वो जितना हो सके उतने deep leaf के tissues तक पहुंचे, water को supply करने के लिए. Getting it? Everyone? Hello? Yes, ma'am. Yes. Great. Yes, miss. Midrib. Now, as you can see, midrib is the prominent middle vein in the leaf, and it is divided into veins. So, what does the veins provide? पहले तो मैं आपको midrib बताती हूँ. Midrib जो है ना, वो center में ही क्यों present होता है मैं आपको बताऊँ? Because it gives a support to the lamina. बच्चा लोग, it gives a support to the lamina. Lamina को proper support मिलता है मोटा सा midrib present होने की वजह से. Veins, it provides rigidity and channels for the transport. अब वो rigidity भी देगा because veins जो है, ये देखो, ये midrib है, suppose. तो veins ऐसे फैल रहा है, like veins are growing laterally and it is spreading in the entire lamina. तो इससे क्या होता है, veins के spreading होने के, मतलब veins का जो branching होने का nature है, veins का जो branching nature है, that is going till the tip of the leaf ना, ये देखो, ये tip of the leaf तक, मतलब leaf के margin तक veins जा रहा है ना, तो veins के spreading nature के वजह से, margin तक spreading nature के वजह से leaf के lamina को, पूरे lamina को एक rigidity मिलता है. वरना आप imagine करो, leaf को support देने के लिए क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना. There is no stem in the leaf. There is no particular hard tissues in the leaf. Leaf is entirely made up of soft tissue. तो उसको proper support दे कौन रहा है? Midrib and veins. Are you getting it? Because midrib and veins consist of what? Xylem. And xylem is nothing but it's a dead tissue which gives rigidity to many soft parts of the plant, right? So यहाँ पे वही concept है
कि ये जो टिपिकल वेन्स और वेनलेट्स और मिडरिब्स आप देख, वेनलेट्स छोड़ दो, बट मिडरिब और वेन्स जो आप देख रहे हो ना, उनके अरेंजमेंट के वजह से पूरे लीफ के लैमिना को एक सपोर्ट मिल जाता है, एक रिजिडिटी मिल जाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट प्रोड्यूस अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड. गेटिंग इट? यानी कि पूरे लीफ के एक एक सेल्स तक वाटर पहुंच जाता है. इट सप्लाइज वाटर. एम आई क्लियर विद दिस? All right. Different types of leaves. Guys, there are different types of leaves which are found. Trust me, अगर आप ये पढ़ने जाओगे ना, ये पॉइंट है ना, अगर आप ये सारे लीव्स को पढ़ने जाओगे ना, पागल हो जाओगे. Yes, we discussed the types of leaves on the basis of shape, on the basis of margin, on the basis of apex, on the basis of surface and extent of incision of lamina. Yes, we studied different types of leaves on the basis of their shape, क्योंकि हर एक प्लांट के लीफ का शेप अलग अलग होता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्जिन्स, मार्जिन्स भी डिफरेंट होते हैं. मार्जिन्स यानी कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, दिस इज मार्जिन. ओके, दिस इज द एपेक्स. द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एपेक्स. एंड सरफेस तो आप देख ही रहे हो, अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस. एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लैमिना, यानी कि एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लैमिना यानी कि अटैचमेंट ऑफ लैमिना टू द पिटियोल. हाउ इज द अटैचमेंट ऑफ द लैमिना टू द पिटियोल? लैमिना का जो अटैचमेंट है पिटियोल पे, वो भी अलग अलग है, अलग अलग प्लांट्स में. अब इतने सारे टाइप्स हम लोग पढ़ने जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे. सो वी हैव कंसिडर ओनली extent of incision of lamina. We have considered only the extent of incision of lamina to study. So we will be studying types of leaves on the basis of extent of incision of lamina, not on the basis of shape, margin, apex and surface. Otherwise we will go crazy. We will start, snatching our hairs and we'll run away from our house. Trust me. इतने सारे types आप पढ़ के ना पागल हो जाओगे. Okay. What are stipules? Can everyone see in my diagram there's a stipule? I'll just circle it with the red color so that you can see. Yes, these are stipules. अब आपको देखकर ऐसा लगता होगा कि अरे मैडम ने तो एक्सिलरी बर्ड को मार्क किया है, बट वो एक्सिलरी बर्ड नहीं है. एक्सिलरी बर्ड स्टिप्यूल्स के ठीक बाजू में ही है, छोटा सा, जो आपको इतना प्रोमिनेंटली दिखाई नहीं देगा. रिमेंबर, एक्सिलरी बर्ड और स्टिप्यूल्स को डिफरेंशिएट करने का यही एक तरीका है. एक्सिलरी बर्ड आर वेरी स्मॉल, ओके, एंड थिक, whereas stipules are little big and they are thin. So what are stipules? These are outgrowth from the leaf base. ध्यान से देखो, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. See, it is arising properly from the leaf base, right? Outgrowth, and that too, which protects the young axillary bud. Exactly, young axillary bud को protect करने के लिए these stipules are present, because you all know herbivorous animals, they come and eat the leaves. अब वो leaves को खा जाते हैं और उसके साथ साथ axillary bud को भी खा जाते हैं. तो just उससे protect करने के लिए stipules produce किया जाता है. And these are very commonly found in dicot plants. Yes, monocot में तो जरूरत नहीं है, found in dicot plants. So the leaf which have stipules are called stipulated leaves, and the leaf which do not have stipules are called exstipulated leaf. Exstipulated leaf. Exstipulated. Exstipulated means no stipules, without stipules. Is that clear? Once you are done with the writing, you please tell me. Done? Yes, ma'am. Chalo, badhiya, very good. So now I think you all are very clear with the structure of leaf,
that is a hypopodium, mesopodium and epipodium, right? है ना? और उसमें थोड़े बहुत हमने मॉडिफिकेशंस देखे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं एज पर द डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट प्लांट्स. या नाउ लेट्स स्टडी द मेन पार्ट ऑफ द लीफ, मतलब जिससे कि हम लीफ को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वेनेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेनेशन? वेनेशन नाम सुनते से आपको क्या दिमाग में आ रहा है? वेनेशन, VENAT. Veins. Yes, we are talking about the veins. arrangement of veins. The arrangement of the veins, exactly. So what is venation, guys? Venation is the arrangement of veins and veinlets. Wow, बहुत precisely हम इस पे फोकस करते हैं. अगर हमें किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करना है ना, हम वेनेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं. यस, वी स्टडी द प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू द वेन्स. We identify the plants, not study. We identify the plants with respect to the veins which are present. Okay, in the fashion, the arrangement of the veins which are seen in the leaf, हम उसी को देखकर है ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्लांट किसको बिलोंग करता होगा. हर्षित, समझ में आ रहा है? Yes. Now, these veins and veinlets are mainly conducting strands. Why are they called conducting strands? Why are they called conducting strands? It's because they water transport करते हैं. Exactly, exactly. So conducting strands में कौन से दो आएंगे बताओ? Which are the two conducting strands? Xylem and phloem. Xylem and phloem. Very good. और ये दोनों conducting strands leaf में होते हैं. वो तो होंगे ही ना. Xylem तो होगा ही because water supply करना है, and water is a raw material for the photosynthesis to produce food. And phloem भी होगा क्योंकि फ्लोएम कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? लीफ में. तो लीफ में से फूड पास भी तो करना है ना, ट्रांसपोर्ट भी तो करना है दूसरे पार्ट्स में, है कि नहीं? तो दोनों के दोनों वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे. ऑलराइट, ओके. नाउ देयर आर टू. प्लीज वेनेशन पे ध्यान देना, बहुत गड़बड़ होगी वरना बहुत मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वेनेशन में. थोड़ा ध्यान देना. डन? डेफिनेशन लिख के हो गया? Okay, pay attention please. Two types, guys, two types: reticulate venation and parallel venation. Reticulate, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ. Veins and veinlets are present in the network form. Network, जाली जाली, network, like a web network. Okay, reticulate. Veins and veinlets, they form network. Midrib is hello, बहुत शांति से सुनना. Midrib is centrally placed and veins and veinlets are distributed laterally. Midribs are centrally placed, midrib center में रहेगा, and veins and veinlets are distributed laterally. ये क्लियर हुआ? मतलब कि हम लोग जो टिपिकल लीफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बच्चा लोग, एक सिंपल लीफ ले लेती हूँ, मैंगो लीफ, मिडरिप, veins and veinlets. How it is distributed? Laterally, है ना? ये देखो, इसको कहते हैं, मतलब मैंने थोड़ा ही दिखा है यहाँ पे, आप समझो ये बहुत ज्यादा है. आप समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये है आपका रेटिकुलेट लीफ. क्लियर? इतना क्लियर? ओके. Yes, miss. Now, it is a characteristic feature of dicot plants. Yes, I would love to highlight this. It is very, very important. डाइकॉट प्लांट को आइडेंटिफाई करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं है. डाइकॉट प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं है. रेटिकुलेट वेनेशन, ट्रस्ट मी, कुछ भी अगर आपको पता नहीं है ना, आपको रूट्स तो कभी प्लांट्स के दिखाई नहीं देते बिकॉज रूट्स आर अंडरग्राउंड. ओके, स्टेम को देख के भी आप कभी कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे प्लांट को, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप लीफ लोगे ना, आपको पता चल जाएगा विच इज मोनोकॉट एंड विच इज डाइकॉट, बिकॉज दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस.
और इसके अलावा और कोई टाइप का वेनेशन नहीं है. देयर आर ओनली 2 टाइप्स, पैरेलल एंड रेटिकुलेट. और रेटिकुलेट जो है वो डाइकॉट प्लांट्स में होता है. ठीक है, 2 टाइप्स. प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन. टाइप्स को ध्यान देना, टाइप्स को ध्यान देना. 2 टाइप्स. फर्स्ट, हेलो हेलो, पिन्नेट यूनिकोस्टेट. सुनो, पिन्नेट, पिन्नेट यूनिकोस्टेट. पिन्नेट और यूनिकोस्टेट. कोस्टेट का मतलब होता है मिडरिब. कोस्टेट का मतलब होता है मिडरिब. यूनिकोस्टेट बोला मतलब 1 मिडरिब. सिंगल मिडरिब. बरोबर है. पिन्नेट का मतलब होता है सिंगल मार्जिन. लीफ का मार्जिन सिंगल है. फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने ड्रॉ किया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज पिन्नेट यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट लीफ, रेटिकुलेट वेनेशन. ये जो मैंने लीफ यहां पे ड्रॉ किया है ना, द बेसिक लीफ ऑफ मैंगो, या दिस इज द पिन्नेट यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन. क्या बोलोगे आप? पिन्नेट यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन. तो जब आप पिन्नेट बोलते हो मुझे क्लिक होता है लीफ का मार्जिन एक ही है, लीफ का मार्जिन डिवाइडेड नहीं है. यूनिकोस्टेट बोलते हो मुझे दिमाग में क्लिक होता है सिंगल मिडरिब. रेटिकुलेट बोलते हो मेरे दिमाग में क्लिक होता है दैट द वेन्स एंड वेनलेट्स आर इन अ नेटवर्क फॉर्म. सी, एक एक वर्ड का एक एक मतलब मुझे समझ में आ जाता है. एंड आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन इमेजिन द लीफ इन फ्रंट ऑफ मी. सेकेंड इज palmate multicoastate. मल्टी का मतलब क्या? मेनी मिडरिब्स. palmate का मतलब, palmate का मतलब margin is divided. कोई बता सकता है कैसा होगा ये लीफ जब मार्जिन डिवाइडेड? हाँ रिदा, ऐसे जब मार्जिन डिवाइडेड होता है इसको बोलते हैं पालमेट. सुन रहे हो? Yes, ma'am. एवरीवन फोकस हियर, बाद में लिखो. पालमेट, ये पालमेट है. तो क्या होता है ऐसे लीफ में? ये जस्ट एक ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ किया, ऐसा कोई लीफ नहीं है, ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ किया. मिडरिब भी उतना डिवाइड होता है. ये देखो, सी दिस, मिडरिब भी उतना डिवाइड होता है. आप समझ रहे हो है कि नहीं? यस, सी दिस, मिडरिब भी उतना डिवाइड होता है. एंड फिर ये मिडरिब पे वेन्स प्रोड्यूस होते हैं, वेनलेट्स प्रोड्यूस होते हैं. अंडरस्टूड? अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो मिडरिब मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, क्या ये ऊपर जाके मर्ज हो रहे हैं क्या? लीफ के टिप पे जाके मर्ज हो रहा है क्या? नहीं, दे आर सेपरेटेड ना, बाइफरकेटेड. यस और नो? तो ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट. ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट, यानी कि पालमेट मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन. समझ में आया? समझ में आया? मिस दोनों का Yes, नाम miss. एक बार रिपीट करो. पालमेट पालमेट क्योंकि मार्जिन डिवाइडेड है. मल्टीकोस्टेट, many midribs are there. Divergent because midribs are separated, bifurcated, they are not joining at the tip. Reticulate venation. Reticulate क्यों? क्योंकि veins और veinlets network form बना रहे हैं. First option. Second option, hello, सिंगल मार्जिन. सुनो
सिंगल मार्जिन। तो आइडियली इसको देख के मेरे को बोलना चाहिए कि ये है अपना पिनेट लीफ, बरोबर है, क्योंकि सिंगल मार्जिन। पूजा मैडम ने लिखा है पालमेट का मतलब मार्जिन इज डिवाइडेड और पिनेट का मतलब सिंगल मार्जिन, बट पूजा मैडम ये लीफ को भी पालमेट कह रही है। क्यों कह रही है? देखो, there are 3 midribs and all the 3 okay, I'm sorry. Yes, there are 3 midribs and all the midribs are joining at the top, at the tip of the leaf. And फिर इसके veins और veinlets है। सुनो कंफ्यूजन होगा। और फिर इसके वेन्स और वेनलेट्स है। सो इवन दो यहां पर मार्जिन सिंगल है, व्हाई आई एम सपोज टू कॉल इट एज अ पालमेट? बिकॉज मिडरिब मोर देन 1 है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि जिस लीफ में मिडरिब एक, मार्जिन भी एक, सिंगल मार्जिन और मिडरिब भी सिंगल, ऐसे लीफ को हम पिनेट बोलेंगे। समझ में आया? समझ में आया? Yes, miss. यस। तो मतलब पिनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हारे पास क्या तरीका है कि तुम ये देखोगे कि वो Single सिंगल मिडरिब वाला है। एग्जैक्टली, सिंगल मिडरिब वाला। अब ये मोर देन सिंगल है, मतलब मोर देन 2 मिडरिब्स है एंड ऊपर जाके जॉइंट हो रहे, तो ये हो जाता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, 1 2 3 joining at the tip, convergent. More than 1 midrib, it is called palmate. It is called palmate. भले आपको मार्जिन सिंगल दिख रहा होगा, but it is called palmate. Is that clear? Check this. Convergent, Ziziphus smilax. Smilax. This is the only monocot plant. Hello? Smilax is the only monocot plant जो रेटिकुलेट वेनेशन दिखा रहा है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, बाकी सारे मोनोकॉट प्लांट्स पैरेलल वेनेशन दिखा रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया? ओके। डाइवर्जेंट, कैस्टर एंड वाइटिस। वाइटिस तो आपको पता है ना, वाइल्ड ग्रेप, मैंने उसका टेंड्रिल दिखाया था आप लोग को। वाइटिस टेंड्रिल दिखाया था मैंने इसको, इसका स्टेम टेंड्रिल याद आ रहा है? वाइटिस, वाइल्ड ग्रेप। Is that clear, everyone? Every single person, please tell me, is it very clear to all of you? Yes. 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 Fantastic. Super. बहुत सारे लोग का कैमरा ऑफ है, why is it so? चलो ठीक है, अभी रब कर दो सारे डायग्राम के आपने ड्रॉ कर लिया है। यस बेटा, मेपल लीफ इज एन एग्जाम्पल। डाइवर्जेंट, सिद्धि डाइवर्जेंट, सिद्धि, हाँ हाँ डाइवर्जेंट। चलो बढ़िया, बट जो दिया है एग्जाम्पल अपने को वही लिखना है ना सिद्धि, है ना? आप याद रख सकते हो लेकिन। ऑल राइट, डायग्राम ड्रॉ करके हो गया, डायग्राम ड्रॉ करके हो गया। चेक दिस आउट, चेक दिस आउट। रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट पिनेट, बरोबर, सिंगल मिडरिब। multi-costed palmate, convergent, and multi-costed palmate divergent. Am I very clear? और आप देख सकते हो तीनों लीफ में मिडरिब डार्क ब्लैक से दिखाया हुआ है, बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है इसमें, बरोबर है? चलो डन। एनी डाउट इन दिस प्लीज बाबा? No, miss. All right, moving on to parallel venation, second type. Veins in lamina run almost parallel to one another.
अभी ये पैरेलल वेनेशन नाम लेते से आपको कौन से लीफ का पहले याद आता है? विच इज दैट वन मास? बनाना लीफ, एग्जैक्टली हर्षित, बनाना लीफ, एग्जैक्टली। वो एक लीफ का हमें बराबर याद रहता है बिकॉज क्या प्रिसाइसली सारे वेन्स एकदम परफेक्ट साइज और शेप के बराबर पैरेलल रन करते हैं। ब्यूटिफुल अरेंजमेंट, ब्यूटिफुल, नाइस, या। So veins in lamina run almost parallel to one another. Maize, grasses, banana, etc. यानी कि सारे monocot plants. I would highlight this point. कहा था ना मैंने, at the end of the chapter you have to give me the precise difference between monocot and dicot plants. शुरुआत हो चुकी है रूट से. I hope आपने स्टेम भी देखा हो and I hope आप लीफ भी देख रहे हो. All right, two types. Hello, two types. Pinnate unicostate banana, मोटा सा सिंगल मिडरिप. I don't have to draw it and show it to you. We all are aware of banana leaf, right? मोटा सा सिंगल मिडरिप होता है जो लैमिना को बराबर दो फ्लैप में डिवाइड करता है एंड उसी लैमिना में सारे पैरेलल वेइंग्स ऐसे रन करते हैं. सुपर ब्यूटीफुल लीफ. सेकंड इज पाल्मेट और मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट ग्रास बाम्बू. ऑलराइट, इफ यू वांट आई कैन ड्रॉ दिस. सपोज ये ग्रास का लीफ है गाइस. ओके, तो यहां से बहुत सारे मिडरिप आएंगे बट वो सारे मिडरिप्स ऊपर जाके जॉइंट होंगे. हर्षित, कैन यू सी दिस? ये है कन्वर्जेंट, है ना, मस्त शार्प एकदम. एंड डाइवर्जेंट का बेस्ट एग्जांपल तो मैं दूंगी फैन पाम. फैन पाम इट्स एन ऑर्नामेंटल प्लांट जो शो के लिए बिल्डिंग के बाहर या कॉम्प्लेक्स के बाहर रखते हैं. फैन पाम, इट्स अ शॉर्ट प्लांट. banana leaf, parallel pinnate unicostate, parallel multicostate, parallel multicostate palmate leaf, maize, grass, etc. and parallel palmate divergent leaf, fan palm. पैरेलल वेन्स है लेकिन डाइवर्जेंट है बिकॉज आप देख सकते हो लीफ का लैमिना भी उतना ही डिवाइडेड है. नाइस, एम आई वेरी क्लियर? चलो यार, ये मेज तो देखा ही हो, ये लीफ तो आपने देखा ही होगा. भुट्टा खाते हैं हम लोग, तो भुट्टे का जो लीफ होता है कितना क्लियरली दिखता है उसमें पैरेलल वेन्स. कितना क्लियरली. भुट्टा भुट्टा कौन कौन जिस लीफ से कवर्ड रहता है ओवरलैपिंग लीव्स, देखो ना वो निकालता है. कभी वो लीफ को उठा के देखा है? कितना सॉफ्ट और कितना स्मूथ होता है सरफेस उसका. एंड उसमें वेन्स कितने प्रोमिनेंटली आपको पैरेलली दिखाई देते हैं. एग्जैक्टली. Everyone clear with this? चलो, good. So I think monocot parallel veins इतना difficult नहीं था. Moving on to types of leaf. अब ये तो तुम्हारा दिमाग हिला देगा, trust me. Types of leaves on the basis of incision of lamina. Ready? Incision of lamina का मतलब क्या होता है? Incision of lamina का मतलब होता है कि laminar petiole के टिप पे कैसे अटैच्ड है ना, वो होता है. सो बेसिकली वी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ incision of lamina into two types leaves: simple leaf and compound leaf. Simple leaf single leaf blade और lamina, इसलिए उसको simple leaf कहते हैं. मतलब ये, that's it. ये जो लीफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, this is simple leaf. बस फर्स्ट क्लास. petiole पे single leaf arising from the petiole. Okay, that is simple leaf. petiole पे single leaf arise है ना, देखो ना, single lamina है ना petiole पे, single leaf blade और a single lamina, correct? That is called simple leaf. Any doubt in this? Okay. Simple leaf draw कर लो. Simple leaf draw करो please.
Now, what is compound leaf? Hello. Compound leaf. Simple leaf तो सबको पता है. Simple leaf तो people leaf भी है ना. We have people, pan. All these are simple leaf. ठीक है? ये सारे simple leaves है. Compound leaf. ये बहुत important है. Leaf blade or lamina is divided into number of segments, and each segment is called leaflet or pinna. Each segment is called leaflet or pinna, and इनको कभी भी axillary bud नहीं होता. They do not have axillary bud at all. मैं किसकी बात कर रही हूं? Can anyone tell me? The leaf blade is divided. Okay, मैं draw करके दिखाती हूँ. Try to identify. Try to identify. कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता. Yeah? मुरैया, मुरैया. Scientific name मुरैया. कड़ी पत्ता. Compound leaf. See? The leaflet is, the lamina is divided into many leaflets. अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ. हेलो, अभी मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, which is going to surprise you a lot. ये मैंने यहाँ पे ओके, ये मैंने यहाँ पे सिंगल लीफ बनाया और ये इसके वेन्स हैं. बरोबर है बच्चा लोग? व्हाट इज दिस? Simple leaf, correct? Now see this. I am rubbing the margin of the leaf. And इसे simple leaf को compound leaf में बना के दिखा रही हूं. Margin rub. And now the margin is divided into small leaflet. क्या difference पता चला? क्या difference पता चला? इसमें से भी leaves पड़ी हुई. क्या? जो वेन्स जो डिवाइडेड होती है मिड रिब से, उसमें भी लीव्स थोड़ी सी. नहीं, हमें ये पता चला कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस ये है कि सिंपल लीफ में सिंगल लीफ ब्लेड था और अभी उसी सिंगल लीफ ब्लेड को अगर हम छोटे 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 लीफ में डिवाइड कर दे तो वो कंपाउंड लीफ बन जाता है. Am I right? So now this is no more simple leaf, this is compound leaf. Or compound leaf, as you can see, it produces leaflets. It will not have axillary bud. How it will have axillary bud? आपको लगता है इसको axillary bud होगा? Because छोटे छोटे leaflets produce हो रहे हैं एक common point पे, एक common stem पे. तो ऐसे leaves को ना axillary bud नहीं होता. ये stem propagation से grow होते हैं. Are you getting it? Done? Draw किया? Okay. Can I rub this? Can I rub this? Yes. Okay. Chalo. Now, compound leaf is divided into two types. Simple leaf में कुछ नहीं है. Simple leaf simple है. Simple leaf is simple. There is nothing much complicated in simple leaf because we know it's a single leaf lamina. It's a single lamina, so nothing types in that. But compound leaf may we have many. Leaf may we have two types. One, pinnately compound leaves. यानी कि leaflets are present laterally on a common axis called rachis.
Okay, rachis is indicating over here midrib of leaf. यानी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको ट्रांजिशन ड्रॉ करके दिखाया ना सिंपल लीफ का कंपाउंड लीफ में, मैंने जो आपको ट्रांजिशन ड्रॉ करके दिखाया ना सिंपल लीफ कैसे कंपाउंड लीफ में बना, उसमें जो मिडरिब था वो मैंने वैसे के वैसे ही रखा था ना. नाउ दैट मिडरिब इज एक्टिंग एज रैचेस. यानी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो ये ड्रॉ किया था, ओके, और इसको मैंने सिंगल मार्जिन बनाया था ना, राइट. अब इसी मार्जिन को मैंने ड्रॉ रब कर दिया एंड इसको छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड कर दिया, राइट. यस, तो ये जो मिडरिब है, दिस मिडरिब इज नाउ कॉल्ड एज रैचेस. अब मैं इसको मिडरिब क्यों बुलाऊं? अब मैं इसको मिडरिब नहीं बुला सकती बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ कॉमन स्टेम जिसके ऊपर, मतलब इट इज एक्टिंग एज अ कॉमन पॉइंट जिसके ऊपर बहुत सारे लीफलेट्स अटैच्ड है. Are you understanding? I will not call it as midrib, but ideally it is midrib. Guys, structurally it is midrib, but I cannot call it as midrib because now it is not representing a single leaf. It is representing many leaflets. तो अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया rachis. I don't know how many of you are understanding this point. इस मतलब सिर्फ नाम चेंज हुआ है ना उसका. स्ट्रक्चरली से मैंने अभी तो वो ट्रांजिशन करके दिखाया बेटा. ओके, ये जो मिडरिब है जो ये सिंगल लीफ में प्रेजेंट है, बराबर है, राइट. और ये उसके वेन्स है, बराबर. So in case of simple leaf, I will call this as midrib. In case of simple leaf, I will call it this as midrib because ये simple leaf है, right? But now the same simple leaf midrib is divided into many leaflets, correct? मतलब उसकी मार्जिन बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइड हो चुकी है. सी दिस, राइट. So now this will be not called as midrib. Now this will be called as rachis. और ये हो जाता है आपका pinnate compound leaf. Is that clear? Yes. Miss, हाँ, the rachis, it directly extends from the stem of the plant. पिटियोल. हाँ, मतलब अभी यहाँ पे तो कोई पिटियोल होगा नहीं बिकॉज ये तो डायरेक्टली उसी पे से अराइज होगा ना, मेन स्टेम में से. एग्जैक्टली, इट विल हैव अ लीफ बेस. Clear? Now in pinnately compound leaf, you're going to kill me seriously. आज तुम लोग मुझे सब लोग मार डालने वाले हो. बोलते मिस है ना अभी बौखला गई, ये पागल होगी, बस करो मिस, बस करो आप. Pinnately compound leaf is divided into 4 types: unipinnate, bipinnate, tripinnate, decompound. Unipinnate, bipinnate, tripinnate, decompound. ठीक है, रब कर रही हूं.
ये रब कर रही हूँ. Can I rub this? Okay. Yes. Now, the second type of leaf in compound is जो compound leaf में जो second type है, but the first type is pinnately compound leaf, which you saw just now. मैंने पूरा explain किया आपको. और उसमें 4 types है. That is unipinnate, bipinnate, tripinnate, decompound. Now the second type is palmately compound leaf. यानी कि आपने अभी पिनेटली कंपाउंड लीफ में देखा कि छोटे छोटे जो लीफलेट्स थे, दे ऑल वेयर अटैच टू रैचेस, करेक्ट, सेपरेटली, मतलब आप उसको प्लग कर सकते हो. लेकिन अब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में कैसा है बच्चा लोग, दैट द लीफलेट्स आर अटैच एट अ कॉमन पॉइंट, यानी कि एट द टिप ऑफ पिटियोल, जस्ट लाइक अ फिंगर्स ऑफ अ पाम. जैसे देखो ये सारे फिंगर्स जो है, इमेजिन दीज आर ऑल लीफलेट्स, बट ऑल दीज लीफलेट्स आर अटैच टू अ कॉमन टिप, दैट इज पाम. समझा? मतलब देखो मेरे सारे फिंगर्स वैसे तो सेपरेट है, लेकिन ये सारे फिंगर्स एक पॉइंट पे अटैच्ड है, दैट इज पाम. सो जस्ट लाइक अ फिंगर्स ऑफ पाम, वैसे बहुत सारे लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होता है. तो मतलब जब आप एक लीफ को निकालने जाओगे ना, तो पूरा का पूरा लीफ बाहर निकलेगा. गेटिंग इट? दैट इज कॉल्ड, मतलब अगर मैं ड्रॉ करूं, सिंपल वर्जन में ड्रॉ करूं तो आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ इट, बट मैं ट्राई कर रही हूँ ड्रॉ करने की. ये देखो ऐसे, ये दिख रहा है आपको ऐसे. So these all are leaflets, guys, but if you see, these all leaflets are attached to a common point, of the petiole. Getting it? तो ये भी palmately compound leaf हुआ, ये palmately compound leaf हुआ, और वो pinnately compound leaf, because margins were separated, margins were not joined. pinnately में यहाँ पे margins are joined. 5 types, can't help it, 5 types: unifoliate, bifoliate, trifoliate, quadrifoliate, and multifoliate. Trust me, you really want to kill me now this time. And we all have to study the types. And we all have to study the types. Okay? Done? Okay. I'm rubbing it. Okay. Diagram देखो. सिर्फ कंपाउंड लीफ ही दिखाऊंगी मैं, सिंपल लीफ को दिखा के कोई मतलब नहीं है. पिनेटली कंपाउंड लीफ, कड़ी पत्ता, एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ. कैन यू सी दिस कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट? या यस. तो मतलब लीव्स जो है ना, लीफलेट्स जो है वो बेस पे अटैच्ड है. यहाँ पे कैसे ईच लीफलेट आर सेपरेट, आप इसको प्लग कर सकते हो. यहाँ पे लीफलेट बेस एक मतलब ईच लीफलेट अपने अपने इंडिविजुअल बेस से वो पिटियोल को अटैच्ड है. मतलब पिटियोल एक्सपैंड हो रहा है और उसी कॉमन पॉइंट पिटियोल पे ये सारे लीफ बेस अटैच्ड है. तो अगर आप एक को निकालने चाहोगे तो पूरा का पूरा लीफ बाहर निकलेगा. इट्स लाइक दैट. गेटिंग इट? हिरल? Yes, miss. क्लियर? दिव्या, रुजाला, मोहम्मद, सिद्धि, हर्षित? Yes, miss. ओके. दीक्षा, कोमल, श्रेया, Yes, ma'am. अरुषा, Yes, ma'am. उज्मा, स्वरा, रुजुता, सिमरन, हीरा, इब्राहिम. आज हमारा किरण नहीं दिख रहा है. ध्वनि, तानिया, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Good. So today we will not do the types of these leaves. Otherwise you're going to die very soon. Okay. So let's do this tomorrow. तो मतलब आज मैंने ना types of incision तक complete किया हुआ है, जिसमें हमें compound leaf के types देखने हैं. याद रखना. So today क्या किया हम लोगों ने? Today we studied morphology of leaf, मतलब उसका structure properly, that is hypopodium, mesopodium, epipodium in a detail. Then we studied venation, which is very important, that is reticulate and parallel venation, and उसमें type study किए हम लोगों ने. And we saw the types of leaf on the basis of incision of lamina. ठीक है? अब ये clear हो गया? आज का summarize कर लिया मैंने. ठीक है? All right, चलो. Bye. Today you will be getting a DPP. Yeah, today you'll be getting a DPP of